this is Rishikesh Writings, and today the Yoga Association make a meeting where the new members rearranged in this association. This association is going to be changed with the name called a Rishikesh Yoga Alliance, and they on meeting they concern about the foreigner who's working on without working visa in the area of Tapovan, Ramjhula and Rishikesh. So they are concerning about this matter because it's violate their working space. So yoga schools are working on this theme also, and yoga schools are going to start one new yoga festival for the Rishikesh, that's called a Rishikesh Yoga Festival on November, associated with the Parmarth Niketan Ashram in Rishikesh. So this is the new theme which Rishikesh Yoga Alliance or Rishikesh Yoga Association make on this meeting, and there is a 200 yoga schools. So today on the meeting, 22 yoga schools participated on this meeting and shared their thoughts with peace and happiness. Namaste. Namaskar everyone. And today I really appreciate all the efforts. It's come from the new generation, and we are trying since quite long behind, and it's very helpful how to save the Indian tradition through the yoga. And because for us yoga is so important, this is the life, so we are just considering how to keep it the values of the life. That is not life only for us, this is the life for in the whole world. Fine. So right now so many other activities which is going on Rishikesh and putting them defame the name of the Rishikesh. So we are trying to do something better for all the people, even then the people those are coming from the outside, all the foreigners, we welcomes to all, and we are trying to do our best from this platform, and we are just making some systematical system is there, so everyone can feel very safe, nice environment, and they can learn yoga, and that yoga is more belong to the lifestyle. So I really appreciate today how they make the good efforts, so becoming more united on that united we are trying to do best ever. So today this is what I can conclude. All these things is good for all. Even then, especially we are just looking forward, when the foreigners comes here, we welcomes to all, and we are trying to create such a nice environment, good platform, so they can learn something real yoga. Fine. And that learn yoga, we are keeping that values and what the West is also demanding. We are trying to fulfill both on the platform. Thank you. नमस्कार बहुगुणा जी, जो आज की मीटिंग हुई है उसमें बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे स्कूलों ने बढ़ चढ़ के सहभागिता दिखाई, और जो है अब जो सभी ने एक जो डिसीजन लिया है मिलके, वो है कि जो विदेशी जो आते हैं हमारे यहाँ पे, उनका स्वागत है, लेकिन जब वो आते हैं यहाँ पे तो या तो वो भारत की जो नियमावली है उसके अनुसार आए और यहाँ पे काम करें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, या किसी लोकल स्कूल को अपने साथ में सपोर्ट रख के अगर उनके भी हाथ पे काम करते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नहीं तो अन्यथा थोड़ा बहुत लोगों ने ये पॉइंट रेज़ किया है, तो अगर ऐसा होता है आगे से तो फिर इसके ऊपर जो है भारत सरकार के द्वारा इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे यहाँ बुलाया गया था, इनविटेशन मिला था, तो मैंने कहा मैं आ जाऊँ, देखूँ तो भाई क्या चल रहा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि एक संस्था बन रही है, एक बॉडी बन रही है, जिससे कि एक जो अनियंत्रित होता जा रहा है ये योगा और योगा से संबंधित चीज़ें, और विदेशियों का यहाँ आना, उनको फिर वो विदेशियों का फिर गलत लोगों से भी मिल जाना, तो वो एक गलत दिशा में ले जा रहा था। तो ऐसे में मैंने पाया आपने बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको। क्या कहेंगे आप इसमें? नमस्ते, मेरा नाम संजीव सेमवाल है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका और बहुगुणा जी का। बहुगुणा जी के माध्यम से अपने संदेश को आगे लोगों तक पहुँचाएंगे।
एक्चुअली यहाँ पे एसोसिएशन का गठन पहले भी किया गया था और जो पहले के पदाधिकारी जो हमारे भाई थे उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है, बट किसी ना किसी कारणवश से वो सक्सेस नहीं उतना हो पाया। तो अभी यहाँ पे जितने भी योग स्कूल के जो मालिक हैं या जो योग शिक्षक हैं, सबकी सर्वसम्मति से एक नई कार्यकारिणी का आज गठन किया गया है, जिसमें हर एक सदस्य को मनोनीत किया गया है कि आपका ये पद है, आपका ये दायित्व है। और मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें हम लोगों को सबसे पहले 2-3 चीज़ों पे काम करना होगा कि जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो आता है, जो विदेशी पर्यटक आता है, उनको एक हमारे भारत सरकार को एक गाइडलाइन उनके लिए स्पेसिफिक बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यटक जो यहाँ पे आते हैं, स्पेशली फॉरेनर्स, को 2-3 महीने 6 महीने के वीज़ा में आते हैं, 1 महीना योगा करते हैं, वो यहाँ पे कैफ़ेस रन कर रहे हैं, होटल्स रन कर रहे हैं, योगा स्कूल चला रहे हैं, योगा वर्कशॉप खुद ही करवाते हैं, बाहर से अपने लोग आते हैं, और जिनके पीछे कई इलीगल एक्टिविटीज़ भी चलती हैं। और ये तपोवन है, हमारा क्षेत्र है, तपोभूमि रही है, संत महात्मा और ऋषियों का ये एक तपोभूमि रही है यहाँ पे। और हमें अब ये लगता है कि हम सबको एकत्रित होकर, एकजुट होकर इन सब चीज़ों के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। और मेरा यही है कि हम अपने लोकल उत्तराखंड सरकार से, हमारे माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी से और हमारे भारत सरकार से हमारा यही आग्रह रहेगा कि हम इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं, और हमें शासन प्रशासन का सपोर्ट की भी इसमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप देखेंगे आज ऋषिकेश में पूरा, अगर हम पूरा क्षेत्र की बात करें तो 200, 300, 400 स्कूल्स हैं। किसी स्कूल का कोई सत्यापन नहीं है, किसी टीचर का कोई सत्यापन नहीं है, किसी मालिक का कोई सत्यापन नहीं है, कौन है, कहाँ से है, लोग बाहर के राज्यों से आके यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं वो, और यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता भी है, बट इंडिविजुअल उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। तो इस कार्यकारिणी का खाली एक मकसद यही नहीं है कि हमें खाली योगा पे ही काम करना है, हमें हमारी कम्युनिटी पे काम करना है, हमें सौंदर्यकरण पे काम करना है। ये जो भूमि है, जो हमारी कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, इसी भूमि से हम खाना भी खाते हैं, तो हमें इन सभी मुद्दों पे हम काम करेंगे। यही इस कार्यकारिणी का मेन मुद्दा था। ये बहुत सुंदर विषय रहा है, और ये मैंने भी पाया है। मैं बल्कि कल ही एक सभा में बैठा हुआ था जहाँ पे ये बात हुई कि कुछ अंग्रेज़ हैं, वो आके यहाँ पे दुकानें खोल रहे हैं, यहाँ अपना व्यापार चालू कर रहे हैं, और ये मैं मानता हूँ ये वीज़ा का वायलेशन भी है, क्योंकि वीज़ा के आधार पर वो ऐसी सारी चीज़ें नहीं चला सकते कि अपने आप ही सारी साम्राज्य चला रहे हैं, अपना चीज़ें कर ली, अपने होटल खोल लिए, अपने योगा स्कूल खोल लिए। तो ये वीज़ा का वायलेशन है। इसमें जो जिम्मेदार लोग कल थे, उन्होंने कहा, ये आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कहा बस हमें उनका, आप केवल बात बताएं, उनके बताएं वो कौन ऐसा अंग्रेज़ है, कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसा नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको तुरंत आप दें और तुरंत उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो मुझे अच्छा लगा कि शासन प्रशासन भी जो है इसमें इसको प्रमुखता से ले रहा है, और मैं उन अंग्रेज़ों को भी मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आपका स्वागत है, आप यहाँ आएँ, वर्क वीज़ा पे आए, काम करें, जो भी काम करते हैं करें, परंतु नियंत्रित करने की कोशिश ना करें, मालिक बनने की कोशिश ना करें। ये सब सही नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ का वो गरीब कहाँ जाएगा, यहाँ का वो चाय वाला कहाँ जाएगा अगर आप अपनी चाय की दुकान खोल लेंगे तो ये सब सही नहीं है। आप इसको नियंत्रित रखें। धन्यवाद।